اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل منتقل۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کریں۔ اسلام آباد کے تمام انڈر ٹرائل قیدی اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ابھی تک اٹک جیل میں کیوں رکھا گیا؟ کل کو آپ رحیم یار خان ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہاں سے ٹرائل کریں گے۔ وکیل کی جیل میں بہتر سہولیات دینے کی استدعا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم اور پڑھے لکھے شخص ہیں، وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی حق تلفی ہو۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ پارٹی رہنما اور کارکن فقید المثال استقبال کی تیاریاں کریں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں۔ لیگی دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی اور اربوں ڈالر کا سی پیک آیا۔ ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی، ترقی اور خوشحالی کا دوبارہ سے دور شروع ہوگا۔ ادھر لندن میں مسلم لیگ نون کی بڑی بیٹھک، نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، ملک احمد خان، سلمان شہباز شریف، نواز شریف کی وطن واپسی، سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے بیرون ملک موجود تمام رہنماؤں کو 3 دن میں واپس بلا لیا گیا۔ سب نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔ ملک میں موجود رہنماؤں کو بھی 21 اکتوبر سے پہلے بیرون ملک کا سفر کرنے سے روک دیا گیا۔ پوری قیادت نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر توجہ دے گی۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام امن کا دین ہے۔ معاشرے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مسیحی برادری کے وفد سے گفتگو۔ بولے کہ مسیحی برادری نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ سپاہ سالار کی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مسیحی برادری کے کردار کی تعریف۔ قومی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کو سراہا۔ مسیحی برادری کی پاک فوج کے انسداد دہشت گردی کے لیے کامیاب آپریشن کی تعریف کی۔ اقلیتوں کے لیے سازگار ماحول بنانے میں پاک فوج کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سے چرچ آف پاکستان اور بشپ آف رائیونڈ کے ناظم اور صدر ڈاکٹر آزاد مارشل کی سربراہی میں مسیحی برادری کے 13 رکنی وفد نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، مذہبی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے قومی ترقی میں مسیحی برادری کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے بالخصوص معیاری تعلیم، صحت عامہ اور فلاحی خدمات سمیت مادر وطن کے دفاع کے لیے مسیحی برادری کے شاندار کردار کی تعریف۔ آرمی چیف نے مسیحی برادری کے لیے بھرپور احترام کا اظہار کرتے ہوئے قائد اعظم کے متحد اور ترقی پسند پاکستان کے حقیقی ویژن پر عمل کرنے کے لیے معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام اور اسلامی معاشرے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہب معاشرے میں کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسیحی برادری کے ارکان نے دہشت گردی سے نمٹنے اور ملک میں اقلیتوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے میں پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ میو ہسپتال میں انجیکشن سے متاثر 6 مریضوں کا آپریٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسد اسلم کے مطابق بظاہر آپریشن کامیاب ہوئے ہیں، مگر 2 روز بعد ٹھیک اندازہ ہوگا۔ ملتان میں بھی 19 مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا۔ انجیکشن کی فروخت کو روک دیا گیا۔ صوبائی وزیر نے میو ہاسپٹل میں مریضوں کی عیادت بھی کی۔ انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا معاملہ۔ پنجاب حکومت نے متاثرہ مریضوں کو اسپتالوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ملتان میں 19 مریضوں کا علاج شروع کر دیا گیا۔ خانیوال سے 8، قصور سے 4 مریض سامنے آئے۔ 6 مریضوں کو میو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی سرجری کی گئی۔ ڈاکٹر اسد اسلم کے مطابق ایویسین انجیکشن سے متاثر 6 مریضوں کا آپریٹ کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں آنکھ سے پس نکالی گئی۔ انجیکشن سے آنکھ کا حصوں میں جو سورس تھا اسے ختم کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال نے میو ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں وقتی طور پر ایویسین انجیکشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर मेयारी इंजेक्शन की पंजाब में सेल रोक दी गई। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाजत का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्शन लेते हुए 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल और साहिवाल समेत 8 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। बिलाशुबा पार्लियामेंट बालातर है, मगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दरख्वास्त गुजार का जवाब जमा हो गया। ख्वाजा तारिक रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। काफ लीग का जवाब भी जमा। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला। कानून आईनी है, अदालत के खिलाफ नहीं। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन पीटीआई को अदालतों में पेश ना करने पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद करने के बाद अदालतों में पेशियों से महरूम कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी और अदालतों में हाजिरी का बुनियादी कानूनी हक रखते हैं। अदालतों में पेश करने से गुरेज इंसाफ का कत्ल और सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश है। अदालत उज़्मा साबिक वज़ीर आज़म को हुसूल इंसाफ से महरूम करने की कोशिशों का फौरी नोटिस ले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों में पेशी और अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी को मुमकिन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद तनाज़े से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस की जानिब से वकील के पूछने पर बुजुर्ग शहरी ने जवाब दिया कि वकील बहुत महंगे हैं, फीसें बहुत ज़्यादा हैं। चीफ जस्टिस ने बुजुर्ग शहरी की केस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। टैक्सेस से मुताल्लिक केस में वकील को 1.5 साल तक जवाब ना जमा कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद और साहिल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपका वकील किधर है। जवाब में बुजुर्ग साहिल सिबगतुल्लाह बोले, हमारी तौबा है केस से, वकील बहुत महंगे हैं। फरीकैन से सुलह हो गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बयान लिख कर दें, केस खारिज कर दें। बुजुर्ग शहरी ने चीफ जस्टिस को मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। जायदाद तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस काजी फायद ने तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वकील की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपने ज़हन से ये तस्वर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे, ये रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। टैक्स से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायद के अहम रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अरबों रुपए के टैक्स मुकदमात हमने दबाकर रखे हुए हैं। वकील से कहा कि आपकी हालत यह है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा ना कराया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को 10,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। पीटीआई की खवातीन कारकुनान की रिहाई का मामला। 4 खवातीन कारकुनान की रोबकार कोट लखपत जेल को मौसूल हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस की नफरी खवातीन कारकुनान को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। जानेंगे, सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज, अपडेट कीजिएगा। देखें, पीटीआई की खवातीन कारकुनों की रिहाई का ये मामला है और जेल ज़राए का ऐसा कहना है कि 4 खवातीन कारकुनों की जो रोबकार है वो कोट लखपत जेल को मौसूल हो गई है और जिन खवातीन की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा कराने का सिलसिला जारी है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार और नैब प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में 7 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद जमा करवाया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंसेस पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर की मकामी अदालत ने साबिक रुकने असम्बली खावर मानिका का करप्शन इल्जामात में 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। खावर मानिका को आज बैरून मुल्क जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट पर तहवील में लिया। खावर मानिका बुशरा बीबी के साबिक शौहर हैं। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन ने खावर मानिका को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया और उनका 1 दिन का राहदारी रिमांड देने की इस्तदा की। मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हकाम की दरखास्त मंजूर कर ली और 1 दिन का राहदारी रिमांड दे दिया।
अदालत ने हुक्म दिया कि खावर मानिका को कल तक मुतलका अदालत में पेश किया जाए। एंटी करप्शन ने सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर खावर फरीद मानिका को गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन के मुताबिक खावर फरीद मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी की जा रही थी। रेफरेंस में बताया गया कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की 4 कनाल जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तामीर किया और कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें भी तामीर की। इससे पहले FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को दुबई जाते हुए रोक लिया। खावर मानिका का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल होने पर उनको रोका गया। खावर मानिका पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। इमिग्रेशन ने खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी करप्शन टीम के हवाले किया। डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 90 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी के बाद 293 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स में 27 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। राशिद खान कराची से रिपोर्ट करेंगे। सट्टेबाजों, डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। अमरीकी करेंसी में गिरावट का सिलसिला मुसलसल जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्तिताम पर डॉलर 90 पैसे मजीद सस्ता होकर 290 रुपए 86 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। 14 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए से जायद की कमी से 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी के बाद 293.50 रुपए से कम होकर 293 रुपए का हो गया। माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहा तो अमरीकी करेंसी मजीद नीचे जाएगी। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मिला जुला रुझान रहा। इंडेक्स में इख्तिताम पर 27 पॉइंट की कमी 46,393 की सतह पर बंद हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फेस्को टीम पर तशद्दुद हुआ। चिन्योट में मकामी जागीरदार ने फेस्को टीम को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़मान के तशद्दुद से 3 फेस्को एहलकारों के सर फट गए। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फेस्को टीम पर तशद्दुद किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और टीम को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। केएल इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदारी की मद में 364 अरब रुपए का नादहिंदा निकला। केएल इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत को अदायगी की बजाय तनाज़ा खड़ा कर दिया। केएल इलेक्ट्रिक 11 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर 30 रुपए में फरोख्त करता है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा वजह केएल इलेक्ट्रिक भी निकला। सस्ती बिजली खरीद कर सार्फिन को महंगे दामों फरोख्त की मगर वफाकी हुकूमत को बिल अदा न किया। ज़राए के मुताबिक केएल इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी की मद में 364 अरब रुपए का नादहिंदा। केएल इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत को अदायगी की बजाय तनाज़ा खड़ा कर लिया। ज़राए वज़ारत तवानाई ने बताया कि केएल इलेक्ट्रिक सब्सिडी मुकम्मल न मिलने का बहाना बनाकर अदायगी नहीं करता। केएल इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत से यौमिया 1100 मेगावाट बिजली हासिल करता है। वफाकी हुकूमत केएल इलेक्ट्रिक को 11 रुपए फी यूनिट में बिजली फरोख्त करती है। केएल इलेक्ट्रिक 11 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर 30 रुपए में फरोख्त करता है। केएल इलेक्ट्रिक अपने प्लांट से महंगी बिजली पैदा करके वफाकी हुकूमत से सब्सिडी वसूल करती है। तर्जमान केएल इलेक्ट्रिक के मुताबिक केएल इलेक्ट्रिक वसूलियों और अदायगियों के लिए हुकूमत और दीगर इदारों के साथ राब्ते में है। चाहते हैं बाहमी मुशावरत से वाजिबात के मसाइल हल हों। FIA पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से 27 लाख रुपए सऊदी और कतरी रियाल बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक और कार्रवाई की गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं IMF के कहने पर किए गए फैसले कबूल नहीं करेंगे। IPPs के मुआहिदे अवाम पर बोझ हैं। तीनों जमातों की नाअहली का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि गुलामी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले। 220 अरब की बिजली मुफ्त इस्तेमाल की जाती है और लोग समझ गए हैं कि जमात इस्लामी की ये जद्दोजहद अपने केसेस के खात्मे के लिए नहीं है, ज़ाती मुफादात के लिए नहीं है, ये 100% आवाम के लिए है। और बाकी सियासी जमातें बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के ग़ुलाम जमातें दूसरे पेज पर। वो लोग जब कल महंगाई की बात करते थे, लॉन्ग मार्च करते थे, जुलूस निकालते थे, धरने देते थे, उनको जब हुकूमत मिली तो उन्होंने उसी तरह महंगाई में और इजाफा किया और आज वो बिल्कुल
बात ही नहीं कर सकते, इसलिए कि इन जराइम में और इन मजालिम में उन तमाम लोगों का हिस्सा है जो गुज़श्ता 5 साल पाकिस्तान पर हुकूमत में रहे, बरसर इक़्तिदार रहे। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की तफसीलात सामने आ गई। पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें तैयार, इंतखाबी सामान की खरीदारी मुकम्मल, बैलेट पेपर्स के लिए वाटर मार्क कागज़ की खरीदारी हो चुकी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए रिजल्ट की तैयारी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से क्या क्या तैयारियां मुकम्मल, तफसीलात सामने आ गईं। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। बैलेट पेपर की छपाई के लिए वाटर मार्क कागज खरीद लिया गया है। इंतखाबी सामान की खरीदारी मुकम्मल की जा चुकी है। मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अफसरान के लिए ट्रेनिंग मटेरियल की छपाई भी की जा चुकी है। आरओज की तैनाती नवंबर के वस्त में होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का अदलिया से आरओज के लिए नए चीफ जस्टिस से दोबारा राब्ता का इम्कान है। अदलिया से इनकार के बाद प्लान बी के तहत ब्यूरोक्रेसी से आरओज की हतमी फहरिस्त तैयार है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 25 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्तें तैयार हो जाएंगी। इंतखाबी फहरिस्तों पर काम तेजी से जारी है। आम इंतखाबात के नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार कर लिया गया। इंतखाबात के शेड्यूल के बाद सिक्योरिटी के लिए इदारों को खतूत लिखे जाएंगे। लाहौर समेत मुल्क भर में आशुब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोजाना 50,000 के करीब मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आंखों की बीमारी आशुब चश्म वायरल इन्फेक्शन है जिससे आंखें सुर्ख हो जाती हैं और आंखों में खारिश, चुभन और जलन भी इसकी अलामात में शामिल हैं। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मर्ज से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान भट्टी। आंखों का मर्ज आशूबे चश्म तेजी से फैलने लगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रोजाना 50,000 के करीब मरीज मुतासर हो रहे हैं। आंख की शिफाफ झिल्ली जो आंख के सफेद हिस्से को ढांपती है, इसकी सोजिश आशूबे चश्म कहलाती है। मर्ज की सूरत में इस झिल्ली की रंगत गुलाबी या सुर्ख रंग में तब्दील हो जाती है। एहतियात वगैरह की, अब जरा है कि बेहतर है, थोड़ा सा है, बार इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा ठीक। दारू वगैरह डाल रहा हूँ मैं, दवाई वगैरह। अखां लाल हो गई सी तो हुण दवाई शवाई लई ते मंगे बड़ा बेहतर हो गया। मर्ज की इब्तदाई इलामात में आंखों का सुर्ख या गुलाबी होना, आंखों से पानी बहना, आंखों में जलन, सूजन और खारिश होना शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि आशूबे चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया, तकिया और रुमाल अलहदा रखें। जो पानी निकल रहा है उसने मरीज ने अपने हाथ में लगाया, वो उसी हाथ से उसने कोई दरवाज़ा खोला, उसके डोर हैंडल पे लगा दिया और किसी और इंसान ने आके उसी डोर हैंडल को पकड़ लिया और अपनी आंख में ट्रांसफर कर लिया। आशूबे चश्म के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं जिनके मुताबिक आशूबे चश्म हाथ मिलाने से ज्यादा फैलता है। खांसी और छींकने से भी दूसरे शख्स को वायरस मुंतकिल हो सकता है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद चश्मा लाजमी पहने। आगे बढ़ेंगे। भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान में भी 2 सिखों को निशाना बनाया गया। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत अच्छा बयान दिया। आलमी दुनिया ने भारतीय मुजालिम पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। भारतीय दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए मिशाल मलिक का मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखाते करना चाहती हूँ जस्टिन ट्रूडो साहब को कि उन्होंने बहुत बोल्डली जो हिंदुस्तान की ना सिर्फ रियासती दहशतगर्दी है बल्कि जो इंटरनेशनल दहशतगर्दी को एक्सपोज करने के लिए जो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड उसके ऊपर खामोश रहते थे कि एक बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, तो हम इस पे खामोश रहे, हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मगर अब वो भी कनाडा के थ्रू मैंने देखा है कि क्योंकि जो भी शवाहिद उनके पास हैं, जो पाकिस्तान कब से कह रहा है कि दहशतगर्दी में हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, इसके रैकेट्स हैं, डिसइंफो लैब की बात हो, हरासमेंट, मर्डर्स, टारगेट किलिंग्स की बात हो पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में, तो अब जब ये जस्टिन ट्रूडो ने जब ये स्टांस लिया है तो आपने देख ही लिया है किस तरह की लैंग्वेज हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है, जो थ्रेट्स आ रही हैं।